قومی اسمبلی میں عمران خان پر تنقید سے مراد سعید آؤٹ آف کنٹرول، ایوان سے باہر جاوید لطیف سے تو میں تلخ جملوں کا تبادلہ، مکہ بھیجڑ دیا، میرے لیڈر کو گالیاں دیں اور غدار کہا، مراد سعید آگ بگولا۔ اور کہتے کہ عمران خان غدار، میں نے تمہیں غدار نہیں کہا، میں نے کہا کیا کہا، تو گالی دینے لگا، گالی دینے لگا تو یہ شروع ہو گیا۔ مگر میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگ جو باتیں اس کے متعلق کرتے ہیں کہ اس کی میں نہیں یہ کہنا چاہتا، نہ میرے لیے یہ چیزیں مناسب ہیں کہ میرے لیے یا کسی بھی رکن اسمبلی کے لیے کہ ان کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، رشتہ ہے، کیوں آنا جانا ہے، یہ چیزیں میں نہیں کہنا چاہتا۔ جاوید لطیف نے بھی حساب کتاب برابر کر دیا، مراد سعید کی ذاتیات پر حملے اپنے بچوں کی طرح قرار دے کر معاف بھی کر دیا، مراد سعید کو ان کے بڑے تمیز سکھائیں، طلال چودھری کی تنقید، رانا ثناء اللہ نے خیبر پختونخوا کی قیادت کو ریلو کٹا اور پھٹیچر قرار دے دیا۔ کل جو زبان استعمال کی گئی اسمبلی کے اندر، کیا وہ پارلیمانی زبان تھی؟ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد صوبائی اسمبلیوں میں بھی درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ تحریک انصاف پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے رویے پر ناراض، سیڑھیوں پر اجلاس لگا لیا۔ سندھ اسمبلی میں بھی گرما گرمی، تحریک استحقاق پیش کرنے کی اجازت نہ دینے پر ایم کیو ایم کا احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان سے واک آؤٹ۔ اقتدار کے 34 سال وزیراعظم کو اندرون سندھ یاد آ ہی گیا، ٹھٹا میں شرازی برادران کی دعوت پر جلسے سے خطاب، نواز شریف کا شاہانہ انداز خزانے کے منہ کھول دیے۔ ٹھیک ہے، شرازی خوش ہے، یہ مخلوق خوش ہے تو تو بھی خوش ہو جا۔ ہیلتھ کارڈ اور 500 بستروں کے اسپتال کا اعلان، گیس، پانی اور سڑک کے لیے 2 ارب روپے دیے جائیں گے۔ آپریشن رد الفساد کسی نسل، فرقے یا مخصوص گروہ کے خلاف نہیں، یہ صرف دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک جامع آپریشن ہے۔ آرمی چیف کا کور کمانڈرز اجلاس سے خطاب، آپریشن کی کامیابی کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد ضروری اور تمام فریقین کے مشترکہ اقدامات ناگزیر قرار۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا بھارتی الزام مسترد کر دیا، بھارتی فوج اپنے علاقے پر توجہ دے، نقل و حرکت کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کیا جائے، پاکستانی ڈی جی ایم او کا بھارتی ہم منصب سے مطالبہ۔ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی مدت 2 سال کرنے پر رضامند ہو گئی، قانون شہادت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو۔ کرپشن اور اقربا پروری کے الزامات پر سندھ پبلک سروس کمیشن عملاً غیر فعال، لیکن اسی کمیشن سے ٹیسٹ پاس کرنے والے 6000 ڈاکٹرز کی قابلیت سوالیہ نشان، وزیر اعلیٰ نے آفر لیٹر جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھارت کی ایل او سی کی پھر خلاف ورزی، آئی ایس پی آر کے مطابق ہمبر سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے خاتون زخمی، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ بھارت میں اڑی حملے کے شبہ میں گرفتار 2 پاکستانی طلباء احسن خورشید اور فیصل عوام کو رہا کر دیا گیا، دفتر خارجہ کی تصدیق، کل پاکستانی حکام کے حوالے کیا جائے گا، بھارتی میڈیا۔ کراچی کے علاقے صدر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی دلچسپ کہانی، عملے نے چند ٹھیلے الٹے اور کچھ ساتھ لے گئے، اہلکاروں کے جاتے ہی ٹھیلوں اور پتھاروں کی دنیا پھر آباد ہو گئی، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ سپریم کورٹ کا کراچی میں 3 روز میں تمام ہورڈنگز اور بل بورڈ سمیت سیاسی اور غیر سیاسی بینرز ہٹانے کا حکم،
स्ट्रक्चर खत्म न किया तो मुतालिका हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और वफाकी एजेंसीज अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सोशल मीडिया के जरिए तौहीन आमेज मवाद की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसी वेबसाइट्स को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा सकता है। चेयरमैन पीटीए गैर मुल्की कंपनीज को हुकूमत की तशवीश से आगाह करें, वजीर दाखिला की हिदायत। और काफी हो, लोकगीत हो या गजल, जो गाया खूब गाया, पठान खान के मद्दा उन्हें आज भी नहीं भूले। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में बात होगी हाथापाई की। PSL फाइनल से मुतालिक इमरान खान के मुतनाज़िब बयान को मुखालफीन ने कौमी असेंबली में उछाला तो कप्तान के खिलाड़ी भी मुश्तइल हो गए। शोर शराबे में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ तो नौबत ऐवान से बाहर निकलकर हाथापाई के इक़दाम तक जा पहुंची। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ ने PSL फाइनल के इनेकाद पर तनकीदी बयान के हवाले से इमरान खान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, इमरान खान मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल कर गद्दारी कर रहे हैं। इस पर तहरीक इंसाफ वाले शोर मचाने लगे। मुराद सईद कुछ ज्यादा ही मुश्तइल नजर आए। डिप्टी स्पीकर मुर्तजा अब्बासी ने इनका माइक बंद कराया तो दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। कुछ देर बाद मुराद सईद को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पंजाब में पख्तूनों का मामला उठाया। फिर हंगामा खेजी हुई तो इजलास मुलतवी कर दिया गया। अपने कप्तान पर इल्जाम का बदला लेने मुराद सईद बाहर निकले और आगे जाते जावेद लतीफ पर हमलावर हुए। बाहर आए, मुझसे हाथ मिला और कहते कि इमरान खान गद्दार, मैंने तुम्हें गद्दार नहीं कहा। मैंने कहा क्या कहा? तो गाली देने लगा। गाली देने लगा तो ये शुरू हो गया। हुकूमती अरकान ने बीच बचाव कराया ताहम मुराद सईद के रवैये पर नाराज भी नजर आए। इतने अच्छे मेंबर पे आप खुद तो देखो, कोई तरीका नहीं बताए आप। बच्चा मुराद सईद को चुभने वाले जावेद लतीफ बज़ाहिर पुरसुकून नजर आने की कोशिश में भी मसरूफ रहे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग जो बातें इसके मुतल्लिक करते हैं कि इसकी मैं नहीं ये कहना चाहता ना मेरे लिए ये चीज़ें मुनासिब हैं कि मेरे लिए या किसी भी रुकने असेंबली के लिए कि उनका इमरान खान से क्या तल्लुक है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामले का नोटिस लेते हुए CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग का जायजा लेकर इब्तदाई तहकीक करने की हिदायत भी कर दी है। पार्लियामेंटेरियन की ये लड़ाई अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है, ताहम ये झगड़ा इसलिए ज्यादा अहमियत का हामिल है कि ऐवान सूबाई हो या कौमी, अपोजिशन को बोलने की इजाजत ही नहीं दी जाती। सिंध और पंजाब की असेंबलियों में भी यही सूरत हाल है और गुस्सा मुसलसल बढ़ता रहे तो वहां भी रद्द अमल पुरतशद्दुद हो सकता है। अपोजिशन के इस रवैये के पीछे भी एक आमराना रवैये की कहानी है। न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सिंध और पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन को यही शिकायत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। वो मैं जवाब देता हूँ उसका, मैं जवाब देता हूँ। आप बैठे, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें प्लीज। दोनों सूबों में जमहूरियत की दावेदार जमातों की हुकूमतें हैं। सिंध असम्बली में मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा आराई हुई और वजह थी अपोजिशन को बोलने की इजाजत न मिलना। प्लीज सिट डाउन, मैं तो इनको बैठाएं, प्लीज सिट डाउन प्लीज। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें ना सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। यहाँ पर अपोजिशन हुकूमत की तारीफें करने के लिए नहीं बैठी है। अगर अपोजिशन का बिजनेस नहीं आएगा फिर गवर्नमेंट का बिजनेस भी जो है ना हम यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठे। स्पीकर और MQM के दरमियान लफ्जी जंग बढ़ती ही गई। आप अदालत से बेशक शिकस्त दें।
MQM अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली और ऐवान से वॉकआउट किया। कल जो जुबान इस्तेमाल की गई असेंबली के अंदर, क्या वो पार्लिमानी जुबान थी? यही सूरत हाल पंजाब असेंबली की भी रही, जहां अपोजिशन ने एहतजाजन ऐवान में जाने से इनकार कर दिया और सीढ़ियों पर ही इजलास लगा लिया। अगर उन्होंने अपने रवैयों को दुरुस्त न किया तो फिर एक इनकलाब है जो अवाम बाहर निकल कर इनका बोरिया बिस्तरा जो है वो समेट देंगे। पंजाब असेंबली की अपोजिशन का भी शिकवा यही था कि उन्हें अवामी इशूज पर बात करने ही नहीं दी जाती। सिंध हो या पंजाब, हिज़्ब इक़्तिदार का एक ही मौक़िफ़ होता है कि अपोजिशन संजीदा नहीं है। बाइकाट और नारेबाजी इसका हल नहीं है। सोचना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी को कितनी तक़वियत दे रहे हैं। पार्लिमानी कवानीन और रिवायत में ये बताया जाता है कि स्पीकर्स गैर जानिबदार होते हैं, ताहम हर तरफ से अपोजिशन की शिकायतें कहानी कुछ और ही सुना रही हैं। और अब जिक्र होगा नोटों की बरसात का। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किसी शहंशाह की तरह ठट्टा पर नवाजिशात की बारिश कर दी है। हेल्थ कार्ड, 500 बिस्तर का अस्पताल, बिजली और गैस की फराहमी और घारो केटी बंदर रोड की तामीर और बंद की तामीर का ऐलान कर दिया। जो मांगा गया वज़ीर आज़म ने शाहाना अंदाज में हर ख्वाहिश पूरी की। शिराजी खुश है, ये मखलूक खुश है तो तू भी खुश हो जा। सब खुश है सर, सब खुश है। ठट्टा में नून लीग का अवामी इज्तिमा किसी शाहीनशाह का दरबार बन गया। तरक्याती मंसूबों का ऐलान शाहाना अंदाज में किया। और मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कुछ लेकर आया हूँ। आप बताएं कितने गांव चाहिए? सर मैंने उतने गांव को बिजली दी जाएगी। वजीर आजम का अपने दौरे हुकूमत के दौरान सिंध में ये पहला जलसा है। इंतखाबात में जब 1 साल रह गया है तो वजीर आजम को अंदरूनी सिंध भी याद आ गया, वो भी शराजी बरादरान की वजह से, जो नून लीग में शमूलियत की चौखी कीमत चाहते हैं, और वजीर आजम ने उन्हें शिकायत का मौका भी नहीं रहने दिया। ठट्टे में ऐलान कर रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत अपना हिस्सा डालती है या नहीं डालती, हम ठट्टे के लोगों को कार्ड जारी करेंगे और इंशाल्लाह कार्ड जारी करने के लिए मैं खुद आऊंगा। यही नहीं, वजीर आजम नवाज शरीफ ने ठट्टा में 500 बिस्तरों के अस्पताल का भी ऐलान किया। एक 500 बिस्तर वाला हॉस्पिटल ठट्टा में कायम किया जाने का फैसला किया। शराजी बरादरान को मुखातिब करते हुए वजीर आजम ने मुसलसल शाहाना अंदाज अपनाया और पूछा कितने इलाकों को बिजली चाहिए। जितनी आप कहें शराजी साहब, उतनी बिजली हाजिर है सबके लिए। जितने गांव आप बताएं कितने गांव चाहिए? सर मैंने उतने गांव को बिजली दी जाएगी। वजीर आजम की नवाज़शात का सिलसिला जारी रहा और फिर उन्होंने सजावल और ठट्टा के लिए गैस मंसूबों का भी ऐलान कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला सजावल और ठट्टा में गैस की फराहमी के लिए मैंने हुक्म जारी कर दिया है। वजीर आजम ने घारो केटी बंदर रोड के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने का भी ऐलान किया और मंसूबे की तकमील के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम फराहम करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ को अचानक ये भी ख्याल आ गया कि समुद्री कटाव से कीमती जमीन बंजर हो रही है, इसीलिए समुद्री कटाव से बचाव के लिए बंद की तामीर भी होनी चाहिए। उन्होंने घारो केटी बंदर रोड की तामीर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। फौजी अदालतों की बहाली के लिए हुकूमत ने पार्लिमानी मुशावरत में मजीद पेशरफ्त हासिल करते हुए कानूनी बिल कल कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने इन अदालतों की मुद्दत 1 साल रखने और वहां सेशन जज बिठाने की तजवीज़ वापस ले ली, ताहम कानूनी शहादत के इतलाक और अपील के फौरन से मुतालिक अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटी। देखते हैं नासिर कासमी की रिपोर्ट। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत हुकूमत, इसके इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों की 2 मुशावरती नशिस्तें हुई। पहले पार्लिमानी मुशावरती इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी समेत सब शरीक थे। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर मबनी कानूनी सिफारिशात को पेश किया। मुशावरत के इब्तदाई मरहला में फौजी अदालतों से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी की सिफारिशात पर इत्तफाक राय की कोई वाज़ेह राह नजर नहीं आई। मुशावरत में कुछ देर का वक्फा भी हुआ। पीपल्स पार्टी ने 1 के बजाय 2 साल
साल के लिए फौजी अदालतों की तोसी पर रजामंदी जाहिर की और इन अदालतों में सेशन जज बिठाने की तजवीज से भी दस्तबरदार हो गई। कानून शहादत के इतलाक और हाई कोर्ट में अपील करने का हक देने से मुतल्लिक सिफारिशात पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बरकरार है। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आईनी तरमीम के नए मसवदे पर इत्तफाक हो गया है, ताहम मजीद कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार हुकूमत और पीपल्स पार्टी होंगे। ANP के इलियास ब्लोर का कहना था कि उबहाम अभी तक मौजूद है। पार्लिमानी निशिस्त के बाद हुकूमत और पीपल्स पार्टी की अलग बैठक भी हुई। बाद में वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि आइन और कानून में तरमीम के बिल जुम्मा को कौमी असम्बली में पेश कर दिए जाएंगे। कानून शहादत पर हुकूमत को एतराज नहीं है, इसमें तरमीम पेश करने का सबको हक है। नासिक आजमी, आज न्यूज, इस्लामाबाद। तो हुकूमत के दावे अपनी जगह। अहम खबर आपको ये दें कि पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत के साथ फौजी अदालतों के बिल पर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है। इस हवाले से हुकूमती बयान हकीकत पर मबनी नहीं है। फरतुल्लाह बाबर कहते हैं कि आज फौजी अदालतों के बिल पर बात आगे नहीं बढ़ सकी है। हमने 9 नुकात दिए हैं, हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के हवाले से पार्लियामेंट में अपना बिल लाएगी। फरतुल्लाह बाबर ने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में मेजबान आसमा शिराजी से खुसूसी गुफ्तगू की। आज इस कमेटी की मीटिंग में बात आगे नहीं बढ़ सकी। बात आगे नहीं बढ़ सकी कि कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ। कंफ्यूजन तो हमने कोई क्रिएट नहीं की। आज यकीनन इजलास तो हुआ था लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ, कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब एक वजीर साहब की तरफ से ये बयान आया, फैसला हुआ है, कोई फैसला बिल्कुल नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर खड़ी है और हम समझते हैं कि जो तजावीज़ हमने दी हैं इनकी इनकॉर्पोरेशन बिल में इंतहाई जरूरी है। अगर हुकूमत हमारी बिल को नहीं मानती सही और वो अपना बिल लाती है जिससे हम मुत्तफिक नहीं है तो जाहिर है हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हम अपना बिल पार्लियामान में पेश कर दें। आर्मी चीफ का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद किसी एक नस्ल, फिरके या ग्रोह के खिलाफ नहीं। कोर कमांडर्स ने कहा कि देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के साथ नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। फौजी क़यादत ने दुश्मन की हर साजिश को कौमी इत्तेहाद से नाकाम बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ ने वाजे किया है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद किसी एक नस्ल, फिरके या ग्रोह के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जामे इकदाम है। आर्मी चीफ ने अरब अमारात और कतर के अपने हालिया दौरे के नताइज से भी कॉन्फ्रेंस के शुरका को आगाह किया। कोर कमांडर्स ने मुल्की सलामती की सूरत हाल, डॉन लीग्स के मामले, ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त पर गौर किया। पाक अफगान सरहदी उमूर, कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। फौजी क़यादत ने PSL फाइनल के कामयाब इनेकाद और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ऑपरेशंस पर फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी करार दिया और इसमें तमाम मुतलका फरीकैन के मुश्तरका इक़दामात को भी नागुज़ीर करार दिया। कोर कमांडर्स ने फौजी अदालतों की साबका कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इन अदालतों की बहाली का हतमी फैसला हुकूमत ने ही करना है। आर्मी चीफ ने हुकूमत के साथ होने वाली गुज़श्ता सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक भी कोर कमांडर्स को एतमाद में लिया। इस कॉन्फ्रेंस में अफगान सरहद पर मरहलावार बाड़ लगाने, अफगान मुहाजिरीन की वापसी के साथ अदलिया, पुलिस, मदारिस और तालीमी इदारों में इस्लाहात पर फैसला साजी हुई थी। फौजी क़यादत ने कौमी मरदमशुमारी में तावन को कौमी खिदमत करार दिया। कोर कमांडर्स ने वाजे किया कि CPEC और मुल्की तरक्की के सफर के खिलाफ दुश्मन के खुफिया इदारों की साजिशों को कौमी इत्तेहाद से नाकाम बनाया जाएगा। फैसल रजा खान, आज न्यूज, रावलपिंडी। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर मदाखलत से मुताल्लिक भारत के नए इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। भारतीय फौज को पैगाम दिया गया है कि इल्जाम तराशियों के बजाय मकबूजा कश्मीर के अंदरूनी हालात पर तवज्जो दी जाए। पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। पाक फौज के DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने कंट्रोल लाइन के साथ दहशतगर्दों की नकलो हरकत होने का इल्जाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारतीय DG मिलिट्री ऑपरेशंस को कहा गया कि महज इल्जाम तराशी न करें, अगर उनके पास सबूत हैं तो उनका पाक फौज के साथ तबादला किया जाए। भारतीय फौज को ये पैगाम भी दिया गया है कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर अपने जेर कब्जा इलाके की सूरत हाल पर तवज्जो दें।
पाकिस्तान ने जोहरी तवानाई के आलमी फोरम्स को भारत के जंगी जुनून का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि सिंतास मुआहदे पर भारत बिलाखिर जमीनी हकायक मानने पर मजबूर हो रहा है। गलती से मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने वाले 2 पाकिस्तानी बच्चों की वापसी कल मुतवक्क है। ये रिपोर्ट देखते हैं। नफीस ज़कीर ने हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि 2008 में दुनिया से सिविल मकासद के लिए जोहरी ताउन लेने वाला भारत फौजी मकासद के लिए एटमी हथियारों के अंबार लगा रहा है। जोहरी टेक्नोलॉजी वाले मुमालिक की तंजीम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को भारत की इस रविश का जायजा लेते हुए माजी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। We expect that as the NSG debates the membership of non-NPT states, it would take stock of the consequences of 2008 exemption and avoid repeating this similar mistake. तर्जमान एक सादी ताउन तंजीम के इस्लामाबाद अजलास को इलाकाई राब्तों और ताउन के लिए कामयाब करार दिया और कहा इससे पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी भी फरोग पाएगी। उन्होंने कहा अफगानिस्तान जमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की भारतीय साजिशों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी रोकने के लिए पाक अफगान सरहदों के इंतजाम को बेहतर बनाना नागजीर है। Border management is the most important aspect as far as we are concerned to control the cross-border terrorism and movement of terrorists who are actually hurting both sides. तर्जमान ने बताया सिंतास मायदे पर पाक भारत हाई कमिश्नर्स के अजलास का शेड्यूल मुरतब किया जा रहा है। भारत को समझ आ गया है कि अभी तनाज़ात को तयशुदा फोरम से ही हल किया जा सकता है। Finally, India has actually realized that the importance of the mechanism under the IWT for resolving water disputes related to the Indus water and its tributaries. नफीस ज़कीर ने बताया गलती से सरहद पार करने वाले 2 पाकिस्तानी बच्चों की वापसी जुमे को मुतवक्को है, जिसके इंतजामात किए जा रहे हैं। बुलेटिन में आगे देखिए। साईं बड़े या राशि अफसर, सरे बाजार नुमाइशी दंगल की अजब कहानी। खबरदार, होशियार, सोशल मीडिया पर डंडा चलने वाला है। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि वजीर आला को कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के राशि मुलाजमीन ने खुला चैलेंज दे दिया, हिम्मत है तो पथारे हटाकर दिखाएं। महकमा इंसदाद तजावीज़ात ने सदर एम्प्रेस मार्केट के अतराफ ऑपरेशन से कबल ही पथारेदारों को इत्तला दे डाली। फिर हुआ फर्जी ऑपरेशन, चंद ठेले उलट दिए गए, कुछ जब्त भी किए गए, मगर अमले के वापस जाते ही सब दोबारा से पहले जैसा हो गया। खावर हुसैन मजीद बताएंगे। वजीर आला सिंध ने पथारे हटाने का हुक्म दिया तो केएमसी का महकमा इंसदादे तजावुजात का अमला पथारों के लिए जन्नत तस्वुर किए जाने वाले इलाके सदर पहुंचा, मगर आने से पहले ही इतला दे दी गई थी, जभी तो ज्यादातर पथारों ने सामान गायब कर दिया था। खानापुरी के लिए पुलिस और केएमसी के अमले ने चंद पथारेदारों को हिरासत में लिया, कुछ ठेले उलट दिए और फिर चंद ठेलों और उनके सामान को गाड़ी में डालकर चलते बने। फिर शुरू हुई असल कहानी। अमले के जाते ही गायब होने वाले पथारेदार वापस लौट आए और अपना कारोबार जमा लिया। अब तो शहरी भी इस ड्रामे को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पथारों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले ही किस तरह ऑपरेशन को नाकाम बनाते हैं। इंतजामिया की ही मिली भगत, आई डोंट नो, मतलब इंतजामिया की ये गलती है कि उन्हें चाहिए था कि एक दफा हट गए तो दोबारा क्यों लगने दिए गए हैं। जो पथारे लगे हैं ना, सब मिली भगत से, यहाँ पुलिस वाले आते, सार्जन वाले आते, सब भत्ता लेके जाते। बेहतर तो यही है कि इसको हटाना चाहिए, हटना चाहिए, रास्ते क्लियर होने चाहिए। अब जब तक रास्ते क्लियर नहीं होंगे ट्रैफिक जाम रहेगी। पथारा माफिया ने वजीर आला सिंध को जाली कार्रवाई करके खुला चैलेंज दे दिया है कि 1.5 लाख तो कुजा 150 पथारे भी खत्म कर सकते हैं तो करके दिखाएं। खावर हुसैन, आज न्यूज, कराची। मुबैना करप्शन और अकरूबा परवरी के इल्जामात के बायस एक तरफ तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तवील अरसे से गैर फाल नजर आ रहा है और दूसरी तरफ वजीर आला ने इसी कमीशन से पास होने वाले 6000 डॉक्टर्स को ऑफर लेटर जारी करने की हिदायत कर दी। अकरबा परवरी और मुबैना करप्शन के इल्जामात सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर मंडलाते रहे हैं और सर्विस कमीशन तवील अरसे से अमलन गैर फाल है और अब वजीर आला सिंध ने इसी कमीशन के पास करदा
6000 डॉक्टर्स को ऑफर लेटर जारी करने का हुक्म दे दिया है। सेहत से मुतल्लिक खुसूसी इजलास वजीर आला की जेर सदारत हुआ। मुराद अली शाह ने 317 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को मुस्तकिल करने की हिदायत दी। ये डॉक्टर्स 2014 में भर्ती किए गए थे। उन्होंने 6000 नए डॉक्टर्स की तैनाती की समरी भी मंजूर कर ली और कहा कि इन डॉक्टर्स को देही इलाकों में भेजा जाएगा। वजीर आला ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, मरीज परेशान हैं, अब सोए नहीं। मुराद अली शाह ने कराची में सेंट्रल बिल्ड बैंक कायम करने की स्कीम पर सुस्त रवि पर भरमी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने होलोकॉस्ट और तौहीन मजहब के बारे में सोशल मीडिया साइट्स के दोहरे मयार की मजम्मत करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद रोकने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सोशल मीडिया साइट्स की जानिब से तौहीन आमेज मवाद हटाने से इंकार के मामले का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन PTA को हदायत की कि सोशल मीडिया साइट्स को हुकूमत पाकिस्तान और रियासत की जानिब से दो टोक अंदाज में बता दिया जाए कि तौहीन आमेज मवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ताउन न किया गया तो ऐसी साइट्स मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने हुक्काम को ये भी हिदायत की कि ऐसा सॉफ्टवेयर और हल तलाश किया जाए जिसके जरिए ममनुआ मवाद पर नजर रखी जाए और उसे हटा दिया जाए। चौधरी निसार ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले मवाद की तशहीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पागलपन से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। आलमी बरादरी को इदराक होना चाहिए कि किसी भी मजहब की तौहीन न काबिल बर्दाश्त है। वज़ीर दाखिला ने फेसबुक की जानिब से अदालती शख्सियात के खिलाफ मवाद हटाने से इंकार का भी तज़किरा किया। रंग बिरंगे फूल आंखों को ठंडक और ताजगी का एहसास दिलाते हैं और जब इन फूलों की सजावट भी आंखों को भाए तो हर सू महक उठता है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में भी फूलों की सजावट का ऐसे ही मुकाबला हुआ, जहां मौजूद हर स्टॉल ही तख्लीकी सलाहियतों का मज़हर था। हुमा भट्ट रिपोर्ट करेंगी। सुहाना मौसम और ऐसे में रंग बिरंगे फूलों की सजावट का मुकाबला हो तो हर कोई कुदरत के हसीन नज़ारों में खो सा जाता है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर दिखे, जहां डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तालिबात ने ताज़ा और सूखे फूलों को बहार और खिज़ां से तशबीह देते हुए ऐसे रंग सजाए कि हर कोई देखता ही रह गया। कहीं छोटा खिला बागीचा नजर आया तो कहीं पतझड़ उमड़ आया। एडवेंटिशियस रूट्स लेके प्लांट्स की, उससे हमने एक त्यारा सा बनाया। ये एक तरह का उनके पोटेंशियल्स को पॉजिटिवली एक्चुअलाइज करने का और यूटिलाइज करने का एक चैनल होता है। इस मुकाबले में BS ऑनर्स के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने हिस्सा लिया। लड़कियों का कहना है कि रंग बिरंगे फूलों ने हर सू महका दिया है। हर टाइप के फ्लावर्स लगाए हैं और हमने डेकोरेशन बहुत अर्जेंटली किया, हमें बिल्कुल पता नहीं था लेकिन फिर भी अच्छा लगा। ये इकिबाना है, मैंने इसमें जरबरा फ्लावर्स यूज किए हैं और देयर इज आल्सो एट्रिनियम and I have used few leaves and few plants to join those through oasis. फ्लोरल आर्ट मुकाबले में 27 स्टॉल सजाए गए। तकरीब के इख्तिताम में कामयाब तालिबात में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम हुए। फूलों की सजावट करती इन लड़कियों का कहना है कि रंग बिरंगे फूल हों तो मौसम के साथ साथ मिजाज भी खूबसूरत हो ही जाता है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। आज 9 बजे के बुलेटिन में आगे देखिए।